صفحہ نمبر 132۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، میں نے فوراً اسے آپ کے پاس بھیج دیا۔ سپاہی پولس رسول کے لیے گھوڑا لے آئے اور تاریکی کی دبیس چادر میں وہ قلعہ سے نکل گئے۔ جب وہ خطرے سے باہر ہو گئے تو ساتھ جانے والے محافظ یروشلم واپس لوٹ آئے، جبکہ گھڑ سوار سپاہی ان کے ساتھ کیسریا گئے اور پولس رسول اور خط کو گورنر تک پہنچایا۔ ایک معلج تاریخ تحریر کرتے ہیں، اگرچہ یہ بات متنازع رہی ہے مگر مقدس لوکا کی قدیم تفصیلات درست ثابت ہوئی ہیں۔ دنیا قدیم میں وہ کون سا تاریخ دان ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے؟ ایک فاضل پروفیسر نے اپنی جماعت سے سوال کیا۔ شاید ٹیسیٹس، سوٹونس، ہیروڈیوٹس، سب غلط تھا۔ جسے سب سے زیادہ پڑھا گیا اور جو سب سے زیادہ قابل اعتماد قدیم تاریخ کا لکھنے والا تھا، وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام لوکا تھا، جو نئے عہد نامہ میں تیسری انجیل اور رسولوں کے اعمال کا لکھاری تھا۔ سر ولیم ریمزے نے 19ویں صدی کے اواخر کا آثار قدیمہ، اس نے کیریئر اس بات کی قائلیت سے شروع کیا کہ رسولوں کے اعمال دوسری صدی کے وسط میں لکھے گئے تھے، جو واقعات کے 200 سال بعد کی بات ہے۔ اپنی آثار قدیمہ کی دریافت کی بنیاد پر اسے آہستہ آہستہ اپنا نظریہ بدلنا پڑا۔ انہوں نے لکھا کہ لوکا کی تاریخ بلا شبہ انتہائی قابل اعتماد ہے اور لوکا کو صف اول کے تاریخ دانوں میں شمار ہونا چاہیے۔ مقدس لوکا کے متعلق رمزے کا ایک وقت خیال تھا کہ ان کی تحریر ناقابل یقین ہے۔ اس وقت کے علماء یوں تنقید کرتے تھے کہ مقدس لوکا شاہی افسروں کو غلط خطاب دیتے تھے، غلط تاریخیں بتاتے تھے اور غلط معلومات کا حوالہ دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے رسولوں کے اعمال کی تصنیف بھی من گھڑت لکھی۔ مثال کے طور پر یہ کہ مقدس لوکا نے کیپرس کے کونسل کو غلطی سے سرگس پولوس کہا، ایک غلط تک بندی۔ نقادوں نے کہا اس لیے کہ کیپرس میں اس وقت تک شاہی لیگٹ حکومت کرتا تھا، نہ کہ پرو کونسل۔ پھر 1879 عیسوی میں رمزے نے کیپرس میں سولی کے مقام پر ایک کتبہ دیکھا جس پر پولوس کے پرو کونسل ہونا تحریر تھا۔ اس طرح مقدس لوکا تھسالونیکیا کے ارباب اختیار کو پولیٹارک کہا، یہ بھی غلط تک بندی۔ نقادوں نے الزام لگایا کیونکہ وہاں یعنی تھسالونیکیوں میں کوئی پولیٹارکی نہ تھی۔ صفحہ نمبر 133۔ پھر 20ویں صدی میں تھسالونیکیا کے سکے ملے جس پر پولیٹارک کھدا ہوا تھا۔ یہی اور دوسری درست شہادتوں نے مقدس لوکا کی ساکھ کو پولوس کے لیے متنازع شخص کو ایک قابل اعتماد تاریخ دان ثابت کر دیا۔ اس ضمن میں کچھ اور بھی مدد ملی۔ مقدس لوکا نے جس طرح پولس رسول کے سمندری جہازوں کے ٹوٹنے کے متعلق بیان کیا تھا، اس سے جہاز رانی کے حالات اور تکنیک کا پتہ چلتا ہے۔ وہ پرانی تحریروں کے بالکل عین مطابق ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن طوفانوں کا ذکر کیا ہے اور جن شدت کی ہواؤں کا بتایا ہے اور جو تباہی کا باعث بنتی تھی، وہ موجودہ کشتی بانی جہاز اور جہاز رانی نے قبول کیا ہے۔ یہ کریت کے جنوبی ساحل پر چلتی ہیں۔ ان کی شدت اتنی تھی کہ وہ جزیروں کے ساتھ 1000 فٹ اونچے پہاڑ کو کھینچ لے گئیں۔ پولس رسول مقدس لوکا کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں عزیز طبیب کہتے ہیں۔ کلسیوں 4 اس کی 14۔ اس سے نقاد یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی تحریر میں کوئی طبی ثبوت ملتے ہیں؟ مقدس لوکا کی مدافعت کرنے والے کہتے ہیں کہ بے شک ملتے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں بیماروں کا ذکر ہے۔ شمعون کی ساس تیز بخار میں مبتلا تھی۔ لوکا 4 اس کی 34۔ بخار کے علاوہ ایک آدمی کوڑھ سے بھرا پڑا تھا۔ لوکا 5 کی 12۔ یہ بات مرقس اور متی میں نہیں ملتی۔ 6 معجزات جو مقدس لوکا نے بڑے انوکھے طریقے سے بیان کیے ہیں، ان میں 5 تو شفا کے متعلق ہے۔ آخری مشاہدہ جو مقدس لوکا کی انجیل سے 5 باب کی 25 سے 33 آیات میں ملتا ہے، ایک ایسی عورت کا ہے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور وہ
तबीबों के इलाज से दुख सह चुकी थी। इसमें शक नहीं कि पेशावराना नज़ाकत से उसकी तफसील में नहीं गए। देखिए लूका 8 उसकी 43 और 48 आयात। एशियाई कोचिक के शहरों का इतना हसीन मंजर पेश किया गया है कि कुछ नकादों ने उन्हें कदीम सफरनामों से इख्तराज किया हुआ कहा। इसी तरह पौलुस रसूल की अदालती पेशी को कमाल महारत से पेश किया गया है, जिससे उनकी रोमी कानूनी कारगुजारी से उनकी वाकफियत का पता चलता है। मुकद्दस लूका भी उस बात का एतराफ़ करते हैं और इंजील के पेश लफ्ज़ में बताते हैं। मैंने मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, और जाहिर है उन्होंने ऐसा ही किया। ताहम एक बात यानी मुकद्दस लूका ने नहीं लिखी कि रोम में पहुंचने के बाद क्या हुआ। मुकद्दस लूका का आखिरी हवाला पौलुस रसूल की मार्फत से है जब वो रोम में कैद थे मिलता है। वो यूं लिखते हैं, सिर्फ लूका मेरे साथ है। दूसरा तीमुथियुस 4:11। उनके अमाल की कहानी आधी है। दूसरी सदी के आखिरी हिस्सा में पता चलता है कि मुकद्दस लूका रूह कुदस से मामूर 74 साल की उम्र में बहरा अस्वद के रोमी जनूबी सूबा बैथनिया में राह मुल्क अदम हुए। सफ़ा नंबर 134। यहीं पर पौलुस रसूल का आखिरी सफ़र ख़त्म हुआ और मुकद्दस लूका का रसूलों के अमाल की तहरीर में यरूशलेम के फंड, जिसे पौलुस रसूल ने बड़ी मेहनत शाका से इकट्ठा किया था, की बात अधूरी रह गई। मुकद्दस लूका ने पौलुस रसूल के यरूशलेम आने का सिर्फ एक ही हवाला दिया। बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुंचाने और नजरें चढ़ाने आया था। अमाल उसकी 24:17। लेकिन हकीकतन इसका दिया जाना और इसमें क्या नतीजा निकला के मुतालिक कोई हरफ नहीं मिलता। तारीखदान इसके मुतालिक कई जवाब पेश करते हैं कि ये फंड गैर यहूदी मसीहियों का यरूशलेम की कलीसिया को सुलह सलामती का नजराना था, और चूंकि मुकद्दस लूका उस मखासमत को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुलह सलामती का जिक्र मुनासिब नहीं समझा, या फिर ताल्लुकात इतने कशीदा हो गए कि यरूशलेम की कलीसिया ने उस हदिये को लेने से इनकार कर दिया। इसलिए इस कशीदगी को मुकद्दस लूका ने बयान करना मुनासिब ना समझा। अगलब ये कि दूसरे मौरखीन उसे यूँ बयान करते हैं कि ये फंड दिया गया और शुक्रगुजारी से उसे कबूल किया गया, लेकिन उसकी अहमियत दूसरे वाक़यात से काफ़ी आया थी, जिससे मुकद्दस लूका ने तफसीलन बताया। कैसरिया यहूदिया का दारुल हुकूमत था। गवर्नर फेलिक्स काफ़ी मशहूर हो गया था कि वो एक मजबूत और मौसर सियासतदान था, जिसकी सख्त इंतज़ामिया की वजह से यहूदी कोई 60 साल बगावत पर आमादा रहे। वो बिला सोचे समझे इस हालत में हाथ डालने वाला ना था, खा उसका कितना ही फ़ायदा क्यों ना होता। उसने पौलुस रसूल को हेरोदीस के महल, यानी उसे हेरोदीस का प्रोटोरियम कहा जाता था, उसमें पहले पौलुस रसूल को कैद रखा गया। यही पैंतुस पिलातुस और हेरोदिस अग्रिप्पा, जो वहीं मरा था, का घर था। उसमें बड़े सब्र से यहूदी मुअज़्ज़िज़ीन के यरूशलेम से आने तक की मुहाफ़ज़त में रखा और इस आदमी के खिलाफ इल्ज़ामात की सुनवाई की। यरूशलेम की नुमाइंदा जमात, जिसमें हननिया और दूसरे बुजुर्ग और एक वकील जिसका नाम तरतुल्लुस था, 5 दिन बाद आए और फेलिक्स को मिलकर अपनी शिकायत सुनाई। फेलिक्स ने पौलुस को बुला भेजा। तरतुल्लुस ने, जिसे गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया गया था, जो अवामी ताल्लुकात में माहिर था, ने खुशामदाना तारुफी तकरीर की, जिसमें उसने फेलिक्स की शानदार हुकूमत की तारीफ की और अपनी रियाया के लिए ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। और दूसरी तरफ पौलुस रसूल को एक मुसीबत और यहूदियों में फसाद बर्पा करने वाला और नासरी फ़िरके का सरगना गर्दाना। उसने हैकल की भी बेहुरमती की थी, लेकिन हमने उसका पीछा किया। दूसरे जो यरूशलेम से आए थे हिमायत में सर हिला रहे थे कि जो कुछ तरतुल्लुस कह रहा था बरहक था। पौलुस को अपने लिए बोलने के लिए कहा गया, जिसने अपने मुकदमे में तरतुल्लुस के हम पल्ला साबित किया। उन्होंने बड़ी खुशी से
फेलिक्स को बताया कि वो कई सालों से उस कौम का मुंसिफ रहा है और उन्होंने तरतुलस को बड़े मुदल्लिल तरीके से मुस्तरद किया। वो बजाय फसाद बर्पा करने के फ़कत इबादत के लिए यरूशलेम गए थे और किसी ने उन्हें झगड़ा करते या लोगों को उकसाते नहीं पाया, ना हैकल में, ना इबादतगाह में और ना ही शहर में। और हकीकत तो यह है कि कहीं भी नहीं। फिर उस पर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा था? इसके अलावा पौलुस ने अपना बयान जारी रखा। इसमें शक नहीं कि वो उस फिरके से ताल्लुक रखता है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। मैं अपने बाप दादों के खुदा की इबादत करता हूँ, बैन इसी तरह जिस तरह शरीयत और नबियों ने लिखा है, और वही उम्मीद रखता हूँ जो ये लोग खुदा में के रास्तबाजों और नारास्तों की क़यामत होगी रखते हैं। उन्होंने कहा कि उसने उसको कायम रखने के लिए वो सब दुख उठाया ताकि मेरा ज़मीर खुदा और आदमियों के सामने पाक रहे। जैसे कि तरतुलस के दावे के मुताबिक पौलुस ने हैकल की बेहुरमती की है, पौलुस ने उसको यह कहकर एक तरफ कर दिया कि वो तो हैकल में खैरात और हदिया देने के लिए आए थे, जबकि चंद फसादियों ने उसके खिलाफ ये खेल रचाया। रोमी कानून के मुताबिक उनको पेश होकर अगर उन्होंने कोई गलत काम किया था तो सबूत पेश करने चाहिए थे। फेलिक्स ने एहसास किया कि वो एक मजहबी मामले में फंस गया है और उसके लिए बेहतर होगा कि उससे दूर ही रहे। खुदावंद यीशु मसीह की मौत के चंद साल बाद उसके दुखों की कहानियों को सदाकत से पेश करना लाजिम था। आप किसी बात को भी छोड़ नहीं सकते थे, ना तो मुर्ख को, ना ही कुरै को, ना ही यहूदा के बोसे को और ना ही कांटों के ताज को। अगर फेलिक्स पौलुस को आज़ाद कर देता तो यहूदी रहनुमा परेशान हो जाते। अगर वो पौलुस को सैनहेड्रिन के हवाले कर देता तो वो रोमी कानून की खिलाफ वर्जी करता। इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि पौलुस रसूल रोमी शहरी थे जिसे तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हकूक हासिल थे। जब पौलुस आए तो उसने ऐसा ही किया, इसलिए उसने इंतज़ार करना बेहतर जाना। उसने कहा कि इन बातों को सब्र से सुलझाया जा सकता है। इसने यहूदी रहनुमाओं से कहा कि वो उसका फैसला बाद में करेगा। इसके अलावा फेलिक्स के लिए उस मुकदमा में एक खुशगवार पहलू भी था। पौलुस ने अपने मुकदमे की बेहतरीन पैरवी की थी। शायद उसके खानदान और दूसरे मसीहियों के पास कुछ रकम भी थी। अगर फेलिक्स ने उम्दा चाल चली तो हो सकता है कि पौलुस की रिहाई के लिए उसको रिश्वत भी पेश करे, और फेलिक्स को रिश्वत हथियाने में कोई पसोपेश ना थी। इसलिए उसने पौलुस को कैद में रखने का हुक्म दिया, लेकिन ये जेल के बजाय हाउस अरेस्ट था। पौलुस रसूल से अच्छा सलूक करने को कहा गया। उनके दोस्त उससे बिला रोक टोक मिल सकते थे और उसकी देखभाल कर सकते थे। सफ़ा नंबर 136। इलावा अजीम फेलिक्स पौलुस रसूल से काफ़ी मुतासिर हुआ था, जिसे उसने दिलचस्प शख्सियत कहा। उसने पौलुस रसूल से राह के मुतालिक भी कुछ सीखा। यानी शुरू में मसीहत को राह का फिरका कहा जाता था, जिससे पौलुस रसूल का ताल्लुक था। अब इस फिरके का एक रहनुमा भी था, जो एक दानिशमंद और ज़हीन और हाजिर दिमाग आदमी था, जो उसको उस तहरीक से और उसके काम से मुतारिफ करा सकता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद फेलिक्स ने पौलुस को अपने और अपनी बीवी द्रोसल्ला, जो एक यहूदी खातून थी, मिलने के लिए हुक्म सादर किया। मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि पौलुस रसूल ने मसीह में अपने ईमान के मुतालिक इस जोड़े को बताया और इंसाफ, तहम्मुल और आइंदा की अदालत पर तबादला ख्याल किया। चूंकि ये मौज़ूआत फेलिक्स के लिए गरां थे, इसलिए उससे दहशतज़दा होकर उसने पौलुस रसूल को वापस भेज दिया। ये कैफियत तकरीबन 2 साल जारी रही और पौलुस रसूल कैसरिया में घर में ही महबूस रहे, मगर उन्होंने इस वक्त को बड़े मुफीद तरीके से गुजारा। वो उस कलीसियाओं को जिन्हें उन्होंने शुरू किया था खतूत लिखते रहे, जो बिलाखिर नए अहदनामा में शामिल किए गए। दानिश की बात इसमें नज़र ये आती है कि मसीही पूरी तारीख में एक एतबार से फेलिक्स के एहसानमंद हैं। इन खतूत में जो बात सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो थी वो ये थी कि जिस शहर में वो जाना चाहते थे वो अब मुमकिन था। वो बेशक रोम था,
लगता है कि वो उस हकीकत से बाखबर थे कि वो दारुल सल्तनत के लोगों से खिताब कर रहे थे, इसलिए वो ज़बान और तर्ज तहरीर में बहुत ज़्यादा मोहतात थे। ये ख़त नए अहदनामा में छठी किताब नज़र आता है, जो 21 खतूत में पहला ख़त है। रोमियो के नाम ख़त में मुख्तलिफ निराला मिजाजी भी पाई जाती है। ये वाहिद ख़त है जिसमें आला अहूद पाए जाते हैं। उनके दूसरे खतूत में कलीसियाओं के मसाइल से निपटा गया है, यानी इसके लिए भी तसव्वुर किया जाता है कि अबरानियों का ख़त पौलुस रसूल ने नहीं लिखा। इस ख़त में भी अहूद का जिक्र है। यही वो ख़त है जिसमें पौलुस रसूल इस सवाल से जो उनको दरपेश था बराह रास्त निपटते हैं। बरतानवी मुसन्निफ और मुतरजम जेबी फिलिप लिखते हैं, पौलुस रसूल कट्टर यहूदी शरीयत में पले बढ़े। उनके नज़दीक खुदा रास्ती का खुदा है और उसमें कोई इखलाकी झोल नहीं। इन दिनों जबकि ज़्यादातर लोग खुदा के मुतालिक बड़ा मामूली और सतही नज़रिया रखते हैं, उनके लिए पौलुस रसूल के मसले का अहाता करना मुश्किल है। वो इसका हल सोच भी नहीं सकते। पौलुस रसूल के नज़दीक खुदा अब्दी जलाल, सच्चाई और भलाई से मामूर है, इसलिए गुनाह उसकी हजूरी में ठहर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे धूप की तपिश में जरासीम मर जाते हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि इस अमर का एक हल शरीयत है, मगर शरीयत गुनाह को दूर नहीं कर सकती, और ना ही कोई ऐसी शरीयत है जो यहूदियों या दुनिया के किसी इंसानी ज़मीर के इखलाकी कानून में ज़ाहिर होती है। लेकिन आदमी आदतन उन अहकाम को तोड़ता रहता है। सफ़ा नंबर 137। इसलिए शरीयत किसी सूरत में भी आदमियों के जुर्म को दूर नहीं कर सकती। यही वजह है कि हम गुमराह हैं। फिलिप कहते हैं कि इस खत में पौलुस रसूल मसीही खुशखबरी की हकीकत की तौज़ीह करते हैं कि खुदा कैसे खुद ही इस दुनिया में बालाखिर अपनी शख्सी मुलाकात से उसका हल पेश करते हैं। खुदा यीशु मसीह की सूरत में इंसान का नुमाइंदा बनकर आते हैं और इरादतन बुराई के नताइज यानी दुख और मौत को बर्दाश्त करते हैं। फिलिप कहते हैं, पौलुस रसूल का आखिरकार रोम में आना उनके अपने मंसूबे से ना था, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि ये यरूशलेम के यहूदियों की मुखालफत की वजह से मारज़ वजूद में आया। उम्र के 50वें साल के आखिर में फेलिक्स सियासी वजहों की बिना पर शहनशाह नीरो के अताब में आ गया और उसे वापस बुला लिया गया, और यूं पोर्शियस फीतस उसका जानशीन बना। यरूशलेम में यहूदी इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कैसरिया जाने में कोई दकीका फरोगज़ाश्त ना किया ताकि पौलुस रसूल का मुकदमा फिर से शुरू करें, और यूं एक और पेशी का तयन हुआ। उनके जहन में कोई और मंसूबा था। वो फीतस को मजबूर करने वाले थे कि वो पौलुस रसूल को वापस यरूशलेम भेज दे, जहां वो उनकी मजहबी अदालत में पेश हो, जिन्होंने उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था। उन्होंने फीतस को ये नहीं बताया था कि उनके मंसूबे में एक और बदलाव था। उन्होंने लोगों को घात में बिठाया हुआ था ताकि पौलुस रसूल के यरूशलेम पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया जाए। फीतस को उनका मंसूबा पसंद आया, जैसा कि उसे समझाया गया था। जितना फीतस को इल्म था, पौलुस रसूल के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद ना थे, और किसी आदमी को 2 साल से बेबुनियाद सबूतों पर कैद रखना दानिशमंदी ना थी। इसलिए उसने पौलुस रसूल से उनकी राय पूछी। पौलुस रसूल ने खतरे को अच्छी तरह भांपते हुए रोमी शहरियत की ईमा पर अपील की कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उन पर मुकदमा करना और सजा देना वाजिब है, और अगर यहूदियों का उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया तो उन्हें यहूदी अदालत में ले जाने का कोई जवाज नहीं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि मुझे कैसर के सामने हाजिर किया जाए। फेस्तस इस पर खुशी से राजी हो गया ताकि यह मसला नीरू के सामने पेश कर दे। उसे सिर्फ ये करना था कि मुल्जिम का कसूर ठरीरन उनके साथ रवाना कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि उसने अग्रप्पा और उसकी मलका बरनीस से कहा था कि यहूदियों की आयद करदा इल्जामात उज़रलिंग हैं, अग्रप्पा भी पौलुस रसूल में इतनी ही दिलचस्पी ले रहा था जितनी फेसितस ले रहा था। इसलिए उसने पौलुस रसूल से खुद मिलने की दरख्वास्त की। जैसा कि मुक़द्दस लूका अंजील में तहरीर करते हैं कि अगले दिन अग्रप्पा और उसकी मलका बरनीस बड़े क्रूफर से सामईन के दीवान में आते हैं। उनके साथ मिलिट्री ट्रिब्यूनों और शहर के शुरफा भी थे। पौलुस रसूल को बुलाया जाता है। जब
फेसितस उनके असहाब हैसियत को पौलुस रसूल के मुतालिक बताता है कि पौलुस रसूल ने कैसर के सामने अपील की है, तो पौलुस रसूल उस सरगजिश्त को सुन रहे थे। फेसितस ने कहा कि मुझे कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई जिससे मैं लिखूं। शायद ये शाही जोड़ा मेरी कुछ मदद कर सके।